Hello students. So as we are continuing chapter number 6, manufacturing industries, and we have still studied about textile industries. Thereafter we had covered all cotton industries, and last lecture was about jute textiles. Okay, so these three lectures I have taken, and we have completed these three industries. Today we are going to take up the topic that is sugar industry. ओके अब हम क्या है शुगर इंडस्ट्री को क्लियर करेंगे, शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि क्या सारी चीज़ें हैं और किस तरह से इसको किया जाएगा. ठीक है, तो अगर शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो खैर इससे पहले थोड़ा सा जूट इंडस्ट्री को एक बार रिवाइज करते हैं 2 मिनट में, 2 से 3 मिनट में. इसके बाद हम शुगर इंडस्ट्री पे बात करेंगे. ओके, so when it comes to jute industry, India is the largest producer of raw jute and it stands at the second place as an exporter after Bangladesh. So here you can have 2 points. First is that India is the largest producer of raw jute. Okay, and the second point which you will see is that India is the second largest exporter of jute. It means exporter of jute is Bangladesh and India remained at the second position. Okay, India remained at the second position in the export of jutes. What was the reason that India is at the second place? So it has its reasons, because India's per consumption of jute is more than a country like Bangladesh. Now next, if we revise here, so most of the jute mills are located in West Bengal among the banks of Hooghly River. One second. Fertilizer industry, we are quite ahead from this topic. Yes, this was the page. Okay, so most of the jute textiles were located near the Hooghly River, 98 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइडर. तो ये हमने पढ़ा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जूट टेक्सटाइल्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये हुगली रिवर के पास में लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल के रीजन में लोकेटेड है ये. इसके बाद अगर हम देखें तो what are the factors that are responsible for jute industry? So the factors are inexpensive water transport, then some good network of roadways and railways. Okay, it also facilitates movement of raw material, cheap labor from Bengal and states of Bihar and UP also. So these are some of the factors which affect the production of jute textiles. Now when it comes to employment, so it provides employment more than 250,000 employees or laborers directly, and it also provides another 40 lakhs small and marginal farmers employment indirectly. Then at last we had studied about what are the current challenges that jute industry is facing. So it is facing the stiff competition from the international market. The first strong point that how it faces challenges, that is about the synthetic substitutes, and then thereafter it faces the challenge from the country like Bangladesh, Brazil, Egypt, Thailand. Okay, these are some of the countries. Next very important point in jute textile was that in 2005 national jute policy was formulated to increase the productivity and improve the quality of the jute. चलिए, तो ये जूट टेक्सटाइल के बारे में ज़रा सी बातें थी, याद रखना है आपको, पॉइंट वाइज चीज़ों को रिमेंबर करेंगे. So today's topic will be sugar. India stands second as a world producer of sugar but occupies first place in the production of gur and khan industry. भारत जो है कि सेकंड पोजीशन पे है शुगर इंडस्ट्री में, शुगर प्रोड्यूस करने में. देन हु इज़ एट द फर्स्ट पोजीशन, आप कमेंट करके बताइएगा. ओके, यू ऑल कमेंट, जो भी सेशन को देख रहा है और सेशन को देखते हुए आप कमेंट करके बताइएगा कि हु स्टैंड्स at
the first position in sugar industry. India is second position. But one thing is important, that India occupies the first place in the production of गुड़ and खांडेसरी. गुड़ और खांडेसरी में भारत नंबर 1 पोजीशन. गुड़ आपको पता है, खांडेसरी में देखिए उसको खांड से बनता है, वो आपको वाइट रंग का जैसे पत्थर की तरह दिखेगा. पत्थर का मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में दिखेगा, उसको हम खांड कहते हैं. कई लोग शुगर अगर नहीं यूज़ करते हैं तो शुगर का एक सब्सटीट्यूट है खांड, उस खांड को यूज़ करते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. द रॉ मटेरियल used in this industry is bulky and its haulage, its sucrose content reduces. रॉ मटेरियल कैसा है इस इंडस्ट्री में, तो बल्की है. और रॉ मटेरियल का मतलब ये है कि जो भी आपका जिस चीज़ से ये शुगर केन बना हुआ है, और दूसरी चीज़ की इसमें एंड सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस. सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस इसको बाद में बताते हैं डिटेल में कैसे सुक्रोज कंटेंट की बातें हैं. वेयर शुड द मिल्स बी आइडियली लोकेटेड. अभी ये एक क्वेश्चन है, और देखिए एनसीईआरटी का बीच का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि वेयर शुड द शुगर इंडस्ट्री बी लोकेटेड, ये सारी चीज़ें हैं. सो कहाँ पे शुगर मिल आइडियल है लोकेट करने के लिए, तो इसके रीजंस देखिए. देर आर ओवर 460 शुगर मिल्स इन द कंट्री स्प्रेड ओवर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात अलॉन्ग विद पंजाब, हरियाणा, एमपी. देखिए इतने सारे स्टेट्स हैं. 60% ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन यूपी एंड बिहार, जिसमें से 60% शुगर मिल आपके यूपी और बिहार में लोकेटेड है. दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो इट इज़ आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर. ठीक है, एक चीज़ इसमें और बता रहा है कि देखिए यूपी और बिहार में जो ये शुगर मिल्स लोकेटेड हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है. जैसे कल हम बात कर रहे थे जूट का लोकेशन कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल के पास में नियर हुगली रिवर, क्योंकि वहाँ पे उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है. कॉटन का लोकेशन कहाँ है, तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश वाले बेल्ट में. क्यों महाराष्ट्र वाले बेल्ट में बहुत ज़्यादा वहाँ पे है, क्योंकि वहाँ पे वो कॉटन अच्छे तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है. वहाँ उसकी आइडियल सिचुएशन है, वैसा नेचुरल क्लाइमेट और इन्वायरमेंट है जहाँ पे उसका प्रोडक्शन ही अच्छा हो सकता है. तो ये एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है. दूसरी चीज़, आपको लेबर भी अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, यूपी और बिहार जैसे स्टेट में. तो दीज आर सम ऑफ द रीज़न. आगे देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ. देखिए इन रिसेंट, एक तो यहाँ पे है देखिए कि 60% ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन यूपी एंड बिहार, ये याद रखिएगा. 460 मिल, ये डेटा याद रखिएगा. जितने स्टेट्स हैं ये ज़रा स्टेट्स याद रखिएगा. ठीक है, इसके बाद देखिए क्या दे रहा है कि in recent year there is a tendency for the mill to shift and concentrate in the southern western state. very important point कि पिछले कुछ सालों में ये देखने को मिल रहा है कि एक recent समय में, पिछले कुछ recent समय में ये देखने को मिल रहा है कि there has been a gradual shift of sugar industry from northern country to southern western part of India. Basically the southwestern part lies in the states of Maharashtra and Gujarat. है कि नहीं. भारत का साउथ वेस्टर्न अगर आप स्टेट देखेंगे तो महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट्स हैं. ठीक है, केरल कर्नाटक पे मत जाइएगा, उसके ऊपर महाराष्ट्र गुजरात वाले बेल्ट की बात हो रहा है. महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश वाले बेल्ट पे ये सारे तीनों ऐसे स्टेट्स हैं. और बेसिकली गुजरात एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है शुगर मिल्स की. यानी अब यहाँ से ज़्यादा आपके शुगर मिल्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किए जा रहे हैं. द रीज़न बिहाइंड इज़ द कूलर क्लाइमेट विच इंश्योर्स अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन. एक तो ऐसा कूलर क्लाइमेट है जो लंबे समय तक रहता है, जिससे शुगर केन को के प्रोडक्शन में हेल्प मिलेगी. दूसरी चीज़, यहाँ पे जो महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में जो शुगर केन प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये हाई सुक्रोज कंटेंट भी जनरेट कर रहे हैं. अब हाई सुक्रोज कंटेंट का यहाँ मतलब ये है कि उसमें जो वही जो सुक्रोज कंटेंट की बात हो रही थी कि उसमें जो रस होता है, जो मिठास होती है गन्ने में, वो ज़्यादा वहाँ के गन्नों में पाई जा रही है. दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की भी बात है. क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पिछले रिसेंट ईयर में जो मिल वगैरह हैं, ये धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ या इंडस्ट्रियल एरिया या ये मिल्स महाराष्ट्र और गुजरात के साइड में हैं. जिस वजह से अगर यूपी से आप शुगर केन को बल्क में यहाँ से लेके और महाराष्ट्र और गुजरात तक ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे, तो बीच में जो उसका सुक्रोज कंटेंट है वो कम हो जाता है. और सुक्रोज कंटेंट ही अगर कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसे शुगर बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी कम होगी. तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जिस वजह से हम देखेंगे तो शुगर इंडस्ट्री महाराष्ट्र और गुजरात में पिछले कुछ समय में शिफ्ट हो गई है.
कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं? तो इट इंक्लूड सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री, ओल्ड एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, देख ही रहे हैं इतना इफिशिएंट और ओल्ड मेथड है, ट्रांसपोर्ट डिले, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन शुगर केन, ठीक है, विच एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज़ ऑफ बैगेज, और ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करने की नीड है। तो ये शुगर इंडस्ट्री है, इसको हम रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़िए, रिवाइज़ करिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिए। एंड क्वेश्चन इज दैट विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, कॉमेंट इट।